Good morning, everyone. Am I audible? Can you hear me? Hello, everyone. Visible? Visible to all? Audible? Clear? Okay, so in yesterday class, or day for yesterday, on 25th, we were solving the exercise 10.3 based on dot product. And we have solved up to question number 6th, not 6, question number 7 or 8. I asked you to solve question number 8 or 9 something. No, question number 10 also I solved. Question number 11. Now question number 11, show that A with mod with B vector plus mod B with A vector is, see here mod A is a scalar and vector B is vector. So vector B and mod A vector will give vector. Then mod B is scalar. Mod B is scalar and vector A is vector. So mod B and A vector will give you vector, and the sum of these two vectors is again a vector. So this entire quantity is a vector. Mod A into B plus mod B into A. Question number 11 of exercise 10.3. The last time I solved question number 10 for you. Now this is question number 11. This is good question. Mod A into B plus mod B into A vector. This quantity is scalar, vector, scalar, vector. So whole quantity is vector. This quantity is vector. Vector plus vector is vector. V means vector, S means scalar. I am just saying this term is vector. Is perpendicular to another vector is given mod A. This is scalar. But multiplication with vector will give vector. This is vector. Minus this is scalar and this is vector. Scalar, vector. This quantity will be vector, this quantity will be vector, and the difference of two vector is again a vector. So these two quantities are vector. What we have to prove? These two vectors show that is perpendicular to this for any two non-zero vectors A and B, means their dot product must be 0. If these two vectors are perpendicular to each other, their dot product will be 0. You can now we will find their dot product. If we get their dot product as 0, the answer will be, then these two vectors C and D will be perpendicular. We assume this is C vector and this is D vector. Mod A B plus mod B A. This is one vector, C vector. Now dot, see this is the dot here. And D vector, what is D? Mod A vector with B minus mod B vector with A. Now here the concept of scalar multiplication with vector, concept of dot product, concept of vector to vector multiplication will work. Those who know the concept of this scalar with vector multiplication and vector to vector dot product multiplication, those will not get any confusion. Otherwise they will think what sir is doing here. Now see, this is scalar, so we can multiply scalar to scalar mod A square. And vector to vector we will multiply D dot B. This is very important step. Don't write directly B square. We to write B dot B because vector और vector के बीच में dot product लगेगा, dot लगेगा. इसलिए इस vector और इस vector के बीच में dot लगाया हमने. और ये तो स्केलर है, तो स्केलर स्केलर का मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है. देन A स्क्वायर इसका इसमें मल्टीप्लाई. देन माइनस A प्लस बी माइनस बी नहीं लगा रहा हूं मैं, इसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं. मॉड ए वो भी यूज कर सकते हैं, मॉड बी, मॉड ए, मॉड बी, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी डॉट ए. ठीक है. नाउ प्लस मॉड बी का मॉड ए के साथ, स्केलर है ये दोनों, इनको एक साथ लिख दो, और ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी.
like this. And इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस मॉड बी स्क्वायर ए डॉट ए. This you can write mod a square mod b square. Square of a vector equal to square of its modulus. B dot b is b square. The next step you can write a square b square, because already explained b dot b is b square. Square of a vector जैसे लिखा था ना, स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर v स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर. वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, v स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर. यहाँ पर ये टर्म मॉड ए मॉड बी कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पर a डॉट बी माइनस ए डॉट बी बचेगा. ये टर्म कॉमन ले ली मैंने, ठीक है. ये कट जाएगी, कट भी कर सकते थे डायरेक्ट, मॉड बी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर. ये पूरी टर्म इससे कट हो जाएगी, ये टर्म इससे कट हो जाएगी, तो फाइनल आंसर 0 आएगा हमारे पास. सो सी डॉट डी इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज सी इज परपेंडिकुलर टू डी. लेकिन सी किसको एज्यूम किया अपन ने, इसको. तो ये लिखना पड़ेगा मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बी ए वेक्टर. This is perpendicular to mod d, मतलब d vector, sorry, mod a b minus mod b a. Proved. You can use a square minus b square formula directly also. The important thing just I want to say here that b dot b will be b square in next step, mod b square, and then terms will get cancelled, a square b square. Okay. Any doubt? Take SS. Any other doubt? I told you to try these questions and ask your doubt. If you have any doubt, you please ask. Otherwise, from my side, I will solve question number 13. Because 12 is easy. If A, B, C are the unit vectors such that A plus B plus C equal to 0, find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. Yes? Any doubt? Question number 13? No. 12 you will try, 13 I am doing. Because you have not tried, I know. Question number 12, you will try. Question number 13, I am doing. This is given that sum of the three vector A plus B plus C equal to 0. A, B, C are unit vectors such that A plus B plus C equal to 0, and A, B, C are unit vectors. It is also given that mod A equal to mod B equal to mod C equal to 1. Because these vectors are unit vector. A vector, B vector, C vector. It is given that A, B and C are unit vector. So there is no need of writing the K, because already written in words, these vectors are unit vectors. So mod A, mod B, mod C equal to 1. Such that this will be 0 vector, because some of the vectors will be vectors. Find the value of A dot B, B dot C, C dot A. You can directly use A plus B plus C whole square formula also. As I told you, we can use the formula of A square, B square, C square here. मतलब A square plus B square plus C square plus 2, A dot B plus 2, B dot C. बस ये डॉट लगाना इंपॉर्टेंट है इसमें, प्लस 2 C डॉट. जैसे हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा में लगाते हैं ना, ऐसे ही 0.00 हो जाएगा. अब ये स्केलर हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वेक्टर 0.00 हो जाएगा. नाउ मॉड A स्क्वायर इज 1. सो दिस इज मॉड A स्क्वायर, दिस इज मॉड B स्क्वायर. वेक्टर का स्क्वायर मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है. स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस. So A square, B square, C square को mod A, mod B, mod C, and we can take 2 common here. A dot B plus B dot C plus C dot A. You can observe here these A square, B square, C square. From this we can write 1 plus 1 plus 1 plus 2 times A dot B plus B dot C plus C dot A equal to 0. So the answer is A dot B plus B dot C plus C dot A. To find the value of this A dot B, B dot C, C dot A scalar will be equal to 1113 minus 3 by 2. This 2 in denominator.
This is the answer. Question number 14. Good question. If either vector A equal to 0 or B equal to 0, A equal to 0 vector or B vector equal to 0 vector, okay, then A dot B is not defined. Then A dot B equal to 0. Theta is not defined. No? If A vector equal to 0 or B vector equal to 0, then theta is not defined, but we define A dot B as 0 vector, a 0 scalar. But the converse need not to be true. Justify your answer with an example. अगर A वेक्टर या B वेक्टर 0 है तो A डॉट B 0 होता है, ठीक है. दिस इंप्लाइज, ये गिवन है. If A dot B equal to 0, this implies A is not equal to 0, B is not equal to 0. ऐसा हो सकता है. A और B दोनों 0 नहीं हो, ये भी प्रूव करना है. नीड बट कन्वर्स इज नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब A या B 0 नहीं है तब भी इनका आंसर 0 आ सकता है. ये कब हो सकता है? वी नो A dot B equal to 0 if A is perpendicular to B. ये भी तो होता है ना केस. So, अगर मैं मान लो A वेक्टर ले लेता हूं, ऐसा वेक्टर जो 0 नहीं है, I माइनस जे, और B वेक्टर क्या ले लेते हैं हम, I प्लस जे, दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसका. इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, A डॉट B I माइनस जे डॉट I प्लस जे, 1 माइनस 1, 0 आ रहा है. The dot product is 0, but vector A and B are not equal to 0. So converse is need not to be true का मतलब, converse need not to be true का मतलब ही यही है कि दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 है पर वो 0 नहीं है. जैसे हमने A और B यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, उन्होंने बोला गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, टेक द स्क्रीनशॉट. Question number 15. If the vectors A, B, C of triangle ABC are, if the vertices A, B and C of a triangle ABC, vertices are given, triangle ABC के 1, 2, 3, vertices are A, 1, 2, 3, B minus 1, 0, 0, C 0, 1, 2. Okay, 3 vertices are given. Find the angle ABC. ABC is the angle between the vector BA and BC. वो तो थ्योरी में भी आपको समझाया है कि अगर आपको एंगल ABC फाइंड करना है ना, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये BA और BC वेक्टर के बीच का एंगल होगा थीटा. एंगल BAC इक्वल टू थीटा. ठीक है, ये हमको फाइंड करना है. तो इसके लिए हम BA वेक्टर फाइंड कर लेते हैं. BA वेक्टर को हम लिखेंगे OA माइनस OB, बिकॉज ये पोजिशन दे रखी है तो पोजिशन वेक्टर वाला फॉर्मूला लग जाएगा OA माइनस OB. क्योंकि दोनों को इनिशियल चाहिए इसलिए BA और BC फाइंड करें. तो BA वेक्टर OB माइनस OA से कितना हो जाएगा, I प्लस 2J प्लस 3K. दिस इज OA वेक्टर एंड OB वेक्टर माइनस I प्लस 0J प्लस 0K. दिस विल गिव अस 2I प्लस 2J प्लस 3K. दिस इज BA वेक्टर. ओके, इसको हम A ले लेते हैं. लेट दिस इज A. एंड नाउ BC वेक्टर. BC वेक्टर को हम लिखेंगे OC माइनस OB. OC माइनस OB विल बी 0I प्लस 1J प्लस 2K. बिकॉज पॉइंट्स आर गिवन मीन्स उनकी पोजीशन दे रखी है.
OC minus OB minus I plus 0j plus 0k. When you subtract this, you will get I plus j plus 2k. Let us suppose this vector is B equal to BC. Now cos theta equal to cos angle BAC, थीटा लिखो या BAC लिखो, इक्वल टू A डॉट B बाय मॉड A मॉड B. मतलब हम क्या लिख रहे हैं, BC डॉट BA अपॉन मॉड BC मॉड BA. वैसे आपने ऊपर एज्यूम कर लिया है तो आप ये भी लिख सकते हैं A डॉट B मॉड A मॉड B, क्योंकि ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है. इनिशियल वेक्टर दिखाने के लिए मैंने फिर भी लिख दिया है BC एंड BA. डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, BC और BA का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, मतलब A और B का डॉट प्रोडक्ट, दिस 2i 2j 3k dot BA vector, BC vector and BA vector. BA vector is written and this is I plus j plus 2k whole upon इनके mod 4 plus 4 plus 9 1 plus 1 plus 4. Dot product will give 2 plus 6 I j j k k. ये बता दिया था मैंने, I j j k की टर्म का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट होता है, बाकी सब जीरो हो जाती है. सो 2 and 6 अपॉन √17 √6. So the final answer 6 plus 2 plus 2 10 upon 102. This is cos theta, and of course this is less than 1, so we know there will be the angle which will give this value in cosine. So theta is tan inverse cos inverse 10 upon √102. थोड़ा इरेगुलर टाइप का आंसर आ रहा है, नहीं तो जनरली आंसर 1/√2 ऐसे आ जाते हैं जो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री मिल जाते हैं. बट सम टाइम ऐसा हो सकता है, तो अगर आपने सब कुछ सही किया है तो ये आंसर सही है. अगर आपने कोई एल्जेब्रिक मिस्टेक नहीं करी, जस्ट प्लीज चेक द आंसर, कहीं कहीं गलत तो नहीं है, सब सही किया हुआ है क्या. आंसर को चेक कर लो एक स्टूडेंट प्लीज. नमन, चेक द आंसर. एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी, चेक कर लो एक बार. ऐसे अजीब से थोड़े आंसर इरेगुलर टाइप आते हैं ना, तब हम चेक करते हैं ओके करेक्ट, क्योंकि मुझे इसलिए डाउट हुआ कि क्या पता कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने. एल्जेब्रिक मिस्टेक देखो कहीं भी किसी भी चीज हो सकती है, अगर आप नॉर्मल इंसान है तो आपसे ये मिस्टेक हो सकती है. इसीलिए तो कहते हैं एग्जाम में बहुत ध्यान से पेपर करना. घर वाले बोलते हैं ना जब आप जाते हैं प्लीज ध्यान से पेपर करना, वो इसलिए बोलते हैं वहां गलती नहीं हो. ये गलतियां तो अपनी अभी सुधर जाएगी, उस गलती के मार्क्स कट जाएंगे. वहां ध्यान रखना पड़ता है अपने, वहां जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा ध्यान से करें, वहां आप अकेले हैं. 16-17 टाइप क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि राइट ट्रायंगल कैसे बताते हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए उनका. ठीक है. नेक्स्ट थ्योरी इज क्रॉस प्रोडक्ट. जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमें, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट हमें दो टाइप से पढ़ने हैं. एक वेक्टर आंसर देगा और एक स्केलर आंसर देगा. स्केलर आंसर को हमने पढ़ लिया जिसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो आंसर वेक्टर में देगा, आंसर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आंसर विल बी इन वेक्टर, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है. और क्रॉस साइन यूज होता है इसलिए इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. टेक द स्क्रीनशॉट. Good. I didn't see your message. That you have written SS done. So cross product of two vectors. Cross product or vector product of two vectors. सपोज ये दो वेक्टर्स हैं A और B.
इसको स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल ए और बी बोल रहे हैं तो ए और बी स्मॉल बी आएंगे, तो शुरुआत में बता दिया था ज्योमेट्री जो बताई थी इसकी। और वी कैन राइट ओ ए एंड ओ बी, टू वेक्टर्स, एंड दिस एंगल इज थीटा इज एज्यूम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। ओ ए वेक्टर ओ बी की तरफ मूव कर रहा है थीटा एंगल के साथ में। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, तो उसमें भी था वहां डॉट की जगह, वहां कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा आएगा, और साथ में एक वेक्टर का और मल्टीप्लाई है इसमें, इसलिए ये वेक्टर हो गया एन केप। व्हाट इज एन केप नाउ? एन केप क्या है सर? ये एन केप कहाँ से आया, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस इंटायर क्वांटिटी को हमको क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है। तो ये स्केलर है, ये स्केलर है, और ये भी स्केलर है, कॉस की जगह साइन है, वो भी तो स्केलर ही होता है, जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। और मॉड भी स्केलर, तो ये तीनों तो स्केलर है, तो आंसर तो स्केलर लग रहा था। इसमें एन कैप का मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब एक वेक्टर बना दिया। अब वेक्टर बना दिया तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, इसका मॉड ले लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी आएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी सर? डायरेक्शन भी तो चाहिए, क्योंकि वेक्टर बोल रहे हैं आप तो वो डायरेक्शन क्या होती है? जहां ए और बी जिस प्लेन में है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। जिस प्लेन में, मतलब जैसे बोर्ड पे मैंने ये ए और बी वेक्टर बना रखे हैं ना, तो ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ जो आपकी आंखों की तरफ आ रही है, ये वाली जो डायरेक्शन है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, इससे हम ऐसे बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसे लाइन तो बना नहीं सकता इस तरह से को बोर्ड के ऊपर, 3D में है ना, इसलिए ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है ऐसे। दिस वेक्टर इज एन वेक्टर, एन कैप इसकी डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। इस डायरेक्शन में ये वेक्टर है ए क्रॉस बी, और उसी की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1 होता है। तो ये ए क्रॉस बी क्या है? सो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। जिस प्लेन में ए और बी बैठे हैं उस पे परपेंडिकुलर है। इसको आप स्क्रू रूल से भी पढ़ सकते, समझ सकते हैं कि जैसे स्क्रू है मान लो, ठीक है, स्क्रू समझते हैं ना, जैसे अपन पेचकस से अंदर करते हैं वॉल के अंदर, वुडन के अंदर, वुड के अंदर, जब कभी किसी चीज में होल करके किसी चीज को हैंग करने के लिए अपन घर में यूज करते हैं ना, तो कील जो होती है, नेल जो होती है, उसको जब अपन अंदर करने के लिए किसका यूज करते हैं? पेचकस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड और इसमें। तो अगर आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये एक वो है, स्क्रू है, आगे से ये नुकीला होता है ना, इसको आप वुडन में डालने के लिए क्या करते हैं? इधर से स्क्रू लेके ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो जब आप इस तरह से इसको रोटेट करते हैं तो देखो आपका थंब आपकी फिंगर की तरफ जाता है ऐसा। तो जब आपका थंब फिंगर की तरफ जाता है तो ये स्क्रू किसकी तरफ जाएगा? अंदर की तरफ, ऐसे अंदर जाएगा। तो ये स्क्रू के अंदर की तरफ की जो डायरेक्शन है ना, ये एक डायरेक्शन है, बोल रहे हैं अंदर की तरफ जाएगा, तो एक डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं ना। तो जब ये अंदर की तरफ जाता है, जब थंब अपनी फिंगर की तरफ आता है, थंब वेक्टर ए है, और ये जो फिंगर है, ठीक है, ये वाली फिंगर, फर्स्ट फिंगर जो हमारी है, ये बी वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर का बी वेक्टर की तरफ जाना, स्क्रू का अंदर की तरफ जाना, स्क्रू का अंदर की तरफ जाना ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताता है, और उसी की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। सो व्हाट इज ए क्रॉस बी? स्क्रू का अंदर की तरफ जाने वाली डायरेक्शन ए क्रॉस बी होती है। एक वेक्टर है ना, इसलिए बोल रहे हैं हम। डायरेक्शन क्या होती है ए क्रॉस बी की? स्क्रू के अंदर की तरफ जाने वाली डायरेक्शन, जब ए वेक्टर बी की तरफ जाता है, मतलब थंब ए वेक्टर है और फिंगर हमारी बी वेक्टर है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा बताओ? स्क्रू बाहर आएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा वो। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। इसमें डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, पर बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होते हैं। उसमें क्या होगा कि स्क्रू बाहर आ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई। अंदर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बाहर की डायरेक्शन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। तो ए से बी की तरफ जाएंगे, और देखो दोनों ही वेक्टर कैसे रखने हैं अपने को इनिशियल रखने, ओ एंड ओ बी, एज यूजुअल, जैसे भी अपन ने बताया, ये थीटा एंगल है इसके बीच में, और ये एन वेक्टर है। अगर हम इसका मॉड ले लें, ऐसे लिख दें, तो देखो क्या हो जाएगा, मॉड ए, तो मॉड ए रहेगा, मॉड बी रहेगा, साइन थीटा भी ऐसे ही रहेगा। मॉड एन कैप कितना होता है? 1। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना बन गया? ए बी साइन थीटा। मॉडुलस तो वही रहा ना ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा, उसका मॉड हो गया है।
तो ए बी साइन थीटा इज द मॉडुलस उस वेक्टर का। ए बी साइन थीटा उसका मॉड होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन किस तरफ होती है? दोनों वेक्टर जिस प्लेन में उस पे परपेंडिकुलर। जैसे मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हूं उस फ्लोर पे अगर मैं मेरे पैरों से दो वेक्टर बना दूं, मेरे पैर ओ मान लो, जहां पर फ्लोर पे टिके हुए हैं उस जगह को मैं ओ मान रहा हूं, वहां से मैंने दो वेक्टर ऐसे बना दिया। अगर आप सामने बैठे होते तो मैं ऐसे समझाता, देखो एक वेक्टर उधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो बीच में एंगल बन जाएगा ना। तो मेरी जो डायरेक्शन है, मैं जो खड़ा हूं, वो मेरी जो डायरेक्शन है वो क्या है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जाते हुए ये ऐसे, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है इस तरह से। और वो नीचे जो दोनों है वो क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी है। जब वेक्टर ए बी की तरफ आ रहा है, मान लो मैंने एक ऐसे पोल पकड़ के इस तरह से घूम रहा, तो वो पोल ऊपर जाएगा, और अगर उल्टा घूमूंगा तो पोल नीचे आएगा। समझ गए ना? अब तो भावना है मेरी जल्दी समझ में आई होगी अब। हाँ, इमेजिन कर लो। So finally, cross product is a vector with formula mod a mod b sin theta n cap। अगर n cap नहीं लिखेंगे तो वो वेक्टर नहीं होगा, मॉड लगा देंगे तो वो वेक्टर से स्केलर बन जाएगा। जैसा मैंने आपको उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में समझाया था, कि क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में समझाया था, सॉरी, कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ऐसे इसका भी कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करी थी हमने। तो हम क्या स्टार्ट करते हैं? इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएगा कोई, क्या था मैंने आपसे कहा था, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीनिंग याद रखना, आगे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में यूज होगा। स्पेशली प्लेन और स्ट्रेट लाइन में तो बहुत यूज होने वाला है। अभी इतना यूज नहीं हो रहा जितना 3D में होगा। यस, प्रोजेक्शन, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन होता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था डॉट प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक चीज तो आपको दिख ही रही है यहाँ पर, कि ये क्या बताता है? एक वेक्टर होता है जो दोनों गिवन वेक्टर्स के ऊपर, उन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। पहली चीज, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे याद रख लो जैसे आपको अपना नाम याद है ना? तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी होते हैं, ए क्रॉस बी ऐसे। अब ए क्रॉस बी को कैसे डिटरमाइन करना कंपोनेंट्स में, वो सब प्रॉपर्टीज में लिखेंगे हम। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसको समझने के लिए मैं दो वेक्टर लेता हूं, ओ ए और ओ बी। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, और ये थीटा की डायरेक्शन ऐसे लिए मैंने। ए से बी जो इधर बनाया था वो इधर बना रहा हूं मैं इसको। और मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वेक्टर है वो इस पे परपेंडिकुलर है, उसको ऐसे बना रहा हूं, क्योंकि यहां तो इस पे परपेंडिकुलर ये बनाया है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर। दिस इज ए क्रॉस बी। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप है, ठीक है? ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी। ओ ए और ओ बी वेक्टर की हेल्प से मैं एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं, जिसका नाम दे देता हूं ओ ए सी बी। मतलब इसके पैरेलल एक लाइन बना दी, इसके पैरेलल एक लाइन बना दी, ये दोनों इस तरह से लाइक वेक्टर जिसे हम बोलते हैं ना, पैरेलल वेक्टर्स। अगर मैं इसमें इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है तो ये कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें तो बनती है, आपको पता ही है। ओ एल बी एल, बी एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने इसमें, ठीक है? बी एल इज परपेंडिकुलर। अगर मैं आपसे बोलता हूं साइन थीटा कितना होगा इसमें इन ट्राइंगल बी एल ओ, राइट ट्राइंगल बी ओ बी एल ओ, बी एल ओ, साइन थीटा, तो आप बोलेंगे सर ये बी एल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी। बी एल मतलब इसकी हाइट ले लेता हूं मैं एच, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है? और ओ बी वेक्टर का मॉड है ये स्मॉल बी, लिख सकता हूं इसको मैं। ओ बी वेक्टर का मॉड है ना, ओ बी वेक्टर का मॉड, मॉड बी वेक्टर इक्वल टू बी बन जाएगा। सो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा, ठीक है? एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। एक रिलेशनशिप बना ली मैंने हाइट में और बेस में और एंगल में। सिंस अभी हमने पढ़ा ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है, अगर ए और बी होता है तो ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं इसका मॉड ले लेता हूं, ए क्रॉस बी का मॉड ले लेता हूं, तो ये ए बी साइन थीटा बन जाता है, एन कैप हट जाएगा। पॉज हो गया है?
पॉज हो गया क्या? अभी तो आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है महक? हाँ, ठीक है। ओके, तो मैं ये वापस समझाऊं, ये जो समझाया फिगर में, देखो इसमें हमने क्या किया है, ओ ए एक ए वेक्टर लिया है और ओ बी दूसरा वेक्टर बी लिया है। ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लिए हमने, ओ ए एंड ओ बी। एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल ओ ए से ओ बी की तरफ जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि डायरेक्शन ओ से ओ ए से ओ बी की तरफ लेंगे, तो ये जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगी, इसलिए ये दोनों पे परपेंडिकुलर का साइन बना रखा है हमने। ठीक है, दिस वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी। मैंने ओ ए वेक्टर के पैरेलल बी वेक्टर से, बी पॉइंट से ओ बी वेक्टर की टिप बी से एक वेक्टर बनाया जो इसके पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर। ऐसे ए पॉइंट से ओ बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाया जो सी पे जाके मिलते हैं दोनों। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम ओ ए सी बी कंप्लीट हो गया और मैंने बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ ए के ऊपर बी एल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए हमको ये ज्योमेट्री करनी पड़ती है, इसलिए इस बी ओ एल और बी एल ओ ट्राइंगल, जो राइट ट्राइंगल है बी एल ओ, इस राइट ट्राइंगल बी एल ओ के अंदर हम साइन थीटा यूज करेंगे, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, सो बी एल अपॉन ओ बी। ओ बी मतलब ओ बी का मॉड, ओ बी का मॉड मतलब बी वेक्टर का मॉड मतलब स्मॉल बी, सो एच इक्वल टू बी साइन थीटा आ गया। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन कैप ऊपर लिखा, फिर मॉड लेते हैं तो एन कैप तो वन हो जाता है, इसलिए ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। जब भी हम मॉड लगाएंगे ए क्रॉस बी में एन कैप हटा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मॉड एन कैप वन होता है। अब इसमें देखो बी साइन थीटा कितना है, ये बी साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी मिलेगी आपको? बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर? बी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं एच। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए इंटू एच, और ए क्या है? बेस, इंटू एच मतलब हाइट, और बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो आप बचपन में पढ़कर आए हैं, 9th 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं इस फॉर्मूले को। मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी जो होता है और उसका मॉडुलस ले लें तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ज्योमेट्रिक से मीनिंग हो गया ना इसका, ज्योमेट्रिक अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो तब इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर्स उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हों। जैसे एडजेसेंट साइड्स मतलब ओ एंड ओ बी आर द एडजेसेंट साइड्स। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, देखो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर उसका मॉड ले लेंगे। अब आप क्वेश्चन आएगा सर क्रॉस प्रोडक्ट लेकर, ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? वो आगे मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज के अंदर कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिर हम उसका मॉड ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। मॉड एक स्केलर आएगा, तो आप बोलोगे तो आंसर स्केलर आ रहा है, तो हमने मॉड लगा रखा है ना यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी का मॉड लेने के बाद जो आंसर आता है वो पैरेललोग्राम का एरिया आता है। अगर आप उसके अंदर मॉड नहीं लेते हैं तो जो आंसर आएगा वो वेक्टोरियल एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये वर्ड भी यूज किया हुआ है बुक के अंदर, कौन सा वर्ड? वेक्टोरियल एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, उसमें एन के साथ में लगा होता है। लेकिन वो जनरली पूछे नहीं जाते इस टाइप से, हमें क्या पूछा जाता है? स्केलर में आंसर पूछा जाता है। तो वेक्टोरियल एरिया वर्ड हम अभी यूज नहीं करते, इसलिए कहा जाता है ना, स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, टेंसर है। इस क्वांटिटी को एरिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि समटाइम्स कुछ वेक्टर यूज कर लेते हैं, यही कुछ रीजन है, लेकिन वो बहुत अंदर की बातें हैं जो हमारे को इस लेवल पे नहीं पढ़नी है, इसलिए हम उतने डीप में जाएंगे भी नहीं इसमें अंदर कि वेक्टर होता है या स्केलर होता है या टेंसर होता है, ऐसा। टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट डन। डन, ओके, लीव मीटिंग।